Hello friends, welcome to CEC Gurukul Live Lectures. Dear friends, as you know that this is our special session on career counseling called Pratibha Samvardhan. Today is Teachers Day. A very happy Teachers Day to each one of you, and dear friends, we believe that this is the most appropriate day to talk about teachers, the teachers who have made difference in our lives. And if you too feel that you want to become a teacher and change somebody's life, then this session would be beneficial for you. Friends, for this discussion on the topic that is careers in teaching, we have with us Mr. Hitesh Tiwari. Mr. Hitesh Tiwari is into the education industry for more than 15 years. He is an educationist, author of two books, certified career counselor, and a resource person. So, dear friends, we believe that he is the most appropriate person from whom we can gather maximum information, as he is going to motivate you why you should choose teaching as a career. So, let's welcome our guest, Mr. Hitesh Tiwari. Mr. Tiwari, welcome to the session. Thank you. So, first of all, a very happy Teachers Day to you, and all the students who might be listening to you through the session of ours would be definitely going to get more and more motivation through you. Right. So with the advent of technology or the way the world is changing, now Right. everything has changed, be it education industry or the other industry, because our topic today is teaching as a career. First of all, through you, we wanted to know how the world has changed in this arena. Okay. First of all, I just want to have a little improvement in the, choosing of the words. I would say it's a sector rather than industry because we are dealing with the human beings, right? We are not dealing with the products probably. So in education sector, things are changing, rules are changing, and that is the need of the hour also. See, depend upon the the kind of students now we are getting. Those who are having gadgets all the time in their hands. So for that it becomes more challenging. But again, I would come back to the roots, like if we have a strong value education in the system, either in the school system or at home, which is there in our society very prevalent, ancient times you see. So that Gurukul system, so obviously you are going to rock. Definitely, one is going to rock if he makes a wise decision. Absolutely. Now, kindly give us in depth detail how one could make careers in this particular area. Okay. See, when we talk about why to choose teaching as a profession, first of all, let me tell you that teaching is the mother of all professions. Like if you are here only because of gurus and teachers, those who shape you, maybe to talk about doctors, engineers, they are doing wonderful job. But when it comes to teachers, it is the teachers those who actually doing the right thing because they are shaping the minds. It is a very noble profession, and then obviously apart from IAS and other big careers, similarly being a teacher you can make a big difference in the society. So if you align with all these 3-4 thoughts together, so I think you are welcome in the teaching profession. You can go with a green signal, I would say. Definitely, and I personally believe that teaching is an emotion. When you Yes. have that particular feeling in your mind, in your heart, that yes, I can give back to the society, you are the most appropriate person to be into the teaching area. So, now how one can go and make his or her way in this particular area? Okay. See, there are certain levels. When we entering into any career, there are certain levels, and then gradually we grow in that particular sector. When talk about teacher, obviously it starts with preschools, pre-primary, kindergarten, and then coming to the primary and then middle. When we talk about classes 6 to 8, and then secondary and senior secondary classes. When I'm talking about the school system in India, right now there are private sector also. There are public sector also. When we talk about government schools, KVS, JNV, or state governments, and different boards are into it. Talk about IB to IGSE to ICSE, CBSE, and state boards. So the minimum qualification for a teacher would be a graduation and a B.Ed. And nowadays they have to qualify the eligibility, teacher eligibility test. We talk about the state test also. It can be a center also, CTET, which is center teacher eligibility test. And then even now the system like education is being changing. Now you can, after plus 2 you have to decide whether you want to become a teacher or not, like the way we decide that we want to become a doctor or engineer.
So there is a 4-year degree where you have to have a graduation plus degree in education as well, जिसको हम B.Ed बोलते थे आगे एक साल, now it divided into 2 years also, that you can do after graduation also, but now there are courses where it is a 4-year combined program is there in various university. And when we talk about schools, then it comes to the universities and colleges also. There we have to have a different criteria. You start with the associate professor to then professor, assistant professor, associate professor, then professor, and that is the hierarchy we go. And also we have some administrative roles also within the system, like from a teacher to become a senior teacher, to become a coordinator, coordinator to become a headmistress, headmistress to become a vice principal, then principal, and then if you are too good, obviously you become the member of the board of management also, right? So it is a like, and I say when you are with the students, let me on a lighter note let me tell you, मैं अपने बेटे को हमेशा कहता हूँ, मैंने कहा जब तुम कॉलेज जाओगे ना मैं तभी स्कूल जा रहा हूँ, because I work in a school, right? So so that's how like you always feel young, because you are always with the human beings, and lively childhood से कम, और वो आते हैं बच्चे इतने खुश, you have some birthdays, कभी हम कुछ कोई त्योहार मना रहे होते हैं, and here we also practice secularism also, isn't it? हम हर दिवस मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, हम गुरपुरब भी मनाते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा संगम रहता है, मतलब जहाँ पे मतलब वी सेलिब्रेट ईच एंड एवरी रिलीजन एंड देयर फेस्टिवल्स एज वेल, तो बड़ा अच्छा लगता है। स्कूल में तो मुझे लगता है कि मतलब यू ऑलवेज फील लाइवली, and it is easier. and one more catch is there, let me tell you, as teachers they have something called summer vacation and winter vacation, जो normally corporates में नहीं होता है, so they got around 40 days of एक बड़ी छुट्टी मिलती है उनको गर्मियों की, ठीक है, summer vacation, and then they around 10 days of winter vacation also. So this is also an advantage that comes under the benefit part of the profession. Very true, because when we are working in 9 to 5 environment, we crave, काश हमारे पास भी ऐसा कुछ होता कि हमारे पास भी defined छुट्टियां होती और हम भी vacations पर जाते. But it is good. It gives you a work-life balance. Particularly teaching profession, जिसके बारे में हमेशा कहते हैं, हम corporate sector में काम कर रहे हैं, MNCs में काम कर रहे हैं, 10 to 12 hours हम काम कर रहे हैं. Where is the work-life balance? But teaching profession gives you that leverage. But now here is a catch also. Here it's also again I'm give you insight. It varies from institution to institution also. Certain institution it is overloaded, like I'm talking about residential schools. So where they stay with the students on the campus, they have evening classes also. Obviously they are getting extra package for that. For example, like others are getting, for example, if I take one is getting 100 and they are getting 150, for example, but they are also giving more hours also. And there are certain organizations where work is kind of like teacher is now not only a teacher who teaches, goes and teaches. It do n number of things. Making reports, follow up of certain things, and nowadays it is activity based things going on. So we have n number of activities, so planning to execution, there are lot many things are there. When I talk about that, we celebrate everything. So just imagine when you have to conduct simple lecture or something, lot of planning and things are going on. Similarly goes in the school as well. We have to have a special assemblies, we have to have certain festivals, we have to have this 15 August, 26 January, so lot many things are there. So this is how the things goes on. एंड लॉट ऑफ प्लानिंग, और इससे मुझे लगता है कि ना बहुत प्रतिभाशाली जो टीचर होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं, एंड दोज हु आर चूजन वन, दोज हु आर गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स एंड दे डू वंडर्स इन देयर लाइफ. Very true. When you get those n number of works as mentioned by you, it gives you a chance to showcase your talent, and one who has this ability to showcase their talent, it is easier for him or her also to understand other persons, or I would say the students caliber, कि एक बच्चे में कितनी प्रतिभा हो सकती है, बस हम उससे किताबों के तले नहीं दबा सकते, क्योंकि हम समझते हैं, हम जानते हैं, हमने वो बात है, इसीलिए हम किसी में भी वो प्रतिभा को ढूंढ सकते हैं. और इसमें मैं ये भी बात जोड़ सकता हूँ इसी आपकी बात के साथ कि there are not bad students, there are bad teachers. मैं बताता हूँ, स्कूल में मुझे मैथ्स इतना अच्छा नहीं लगता था. आई वॉज समथिंग लाइक यार मैथ्स को थोड़ा सा मैं अवॉइड करता था, लेकिन नाउ डेज आई लव मैथ्स. मुझे कैलकुलेशन बड़ी अच्छी लगती है. कई बार सामने वाला अगर दुकानदार उल्टे से करता है तो मैं उससे पहले फास्ट कैलकुलेशन करके आंसर अपने माइंड में रख लेता हूँ कि ये 526 रुपये हो गए टोटल. सो दिस इज हाउ, बिकॉज इट्स मैथ एंड साइंस, दे आर एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल लाइफ. टॉक अबाउट बिग नेम्स लाइक सलमान हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, बट दे आर डूइंग इट, दे आर चेंजिंग द सिनेरियो नाउ. वेरी ट्रू. इसमें गेमिफिकेशन का भी एक रोल है. जैसे मैं 2 मिनट उस पर बात करना चाहूँगा. आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब आप पायलट बनते हैं, जब आप ड्राइविंग सीखते हैं, तो आजकल सिमुलेशंस होते हैं. आपको डायरेक्ट वो जहाज़ नहीं पकड़ा रहे थे कि भाई आप जाओ और उसको उड़ाओ.
तो एक सिमुलेशन होता है जहाँ पे वो पूरा गेमिंग जोन की तरह से बच्चे कार चलाते हैं, गेमिंग जोन में जाके उनको पूरा फील आता है, वो एक स्टीयरिंग दिया जाता है, ब्रेक होती है, एक्सीलेटर होता है। सो सिमिलरली गेमिफिकेशन इस तरह से हो गया कि बच्चों को गेम्स के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू कुछ ऐसा सिखाया जाए कि, क्योंकि गेम्स और स्पोर्ट्स में बच्चे हमेशा एक्टिव होते हैं। यू रिमेंबर योर ओन डेज, जब आप स्कूल में थे, लास्ट पीरियड भी अगर गेम्स का होगा ना तो आप फुल एनर्जी के साथ जाते हो, जितनी मर्जी तेज धूप हो, जितनी मर्जी ठंड हो, सर्दी हो, बच्चे भागे जाते हैं। आज भी आप बच्चों को बोलो खेलना है, वो सब कुछ छोड़ के, उनको भूख भी लगी, सब छोड़ देंगे, वो भाग जाएंगे। गेटिंग इट? सो हाउ गेमिफिकेशन, दिस इज नाउ अ न्यू ट्रेंड गोइंग ऑन कि गेमिफिकेशन के थ्रू हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। And I have done a session where I have told around almost 25 plus things which we can learn from sports, right? जिसमें डिसिप्लिन आ गया, टीम वर्क आ गया, एंड मोस्ट ऑफ देम आई हैव टोल्ड माई पार्टिसिपेंट, माई स्टूडेंट्स, आप बताओ कि हम स्पोर्ट्स से क्या क्या सीख सकते हैं, राइट? दिस इज ट्रू। अब हम ये कह सकते हैं कि टीचर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो पहले की भांति कुछ ज़्यादा बढ़ा है, बिकॉज एज यू सेड वी आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग, वी आर इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स। द टीचर्स at that time when we were in school, they were awesome, they were incomparable, but teachers today, हम ये नहीं कह सकते कि उस ज़माने के अच्छे थे, ज़माने के अच्छे नहीं, बिकॉज टीचर्स टुडे हैज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। जो भी एक्टिविटी कराते हैं उसके लिए लेसन प्लान बनाते हैं, खुद इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन दे गेट देमसेल्व्स एंगेज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। सी अगेन आई गो बैक टू द रूट्स थिंग्स। बेसिकली सी मुझे लगता है कि पढ़ाई तो बच्चा कर ही लेगा, इट्स ऑल अबाउट द अवेयरनेस। आज आपको समझ में आ गया कि इस सब्जेक्ट की क्या वैल्यू है मेरे लिए, तो आप एक्स्ट्रा भी जाके पढ़ोगे, आप ऑनलाइन भी पढ़ोगे, आप ट्यूशंस भी रखोगे, यू टॉक टू योर टीचर्स, यू गो थ्रू रिसर्च पेपर, समथिंग और दी अदर। जब आपका कीन इंटरेस्ट होता है, खुद से उसमें मेहनत करते हो। लेकिन वन थिंग विच इज़ लैकिंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम नाउ डेज इज वी आर डिस्कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअलिज्म, वी आर डिस्कनेक्टेड विद आवर कोर वैल्यूज़। मैं देखता हूँ, मतलब दिल्ली के स्कूल में जब मैं देखता हूँ कि बच्चों में ना अपने बड़ों के लिए रिस्पेक्ट नहीं रही अभी। मैं ये आपको ओपन इसमें कह सकता हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्कूल्स में मैंने फेस करा है। इवन टीचर्स हैव गिवन मी दिस फीडबैक। जब मैं जाता हूँ अलग अलग जगह पे, मैं एज ए रिसोर्स पर्सन जाता हूँ, लेकिन अभी भी छोटे गांव में, छोटे शहरों में थोड़ा सा वो सिस्टम थोड़ा सा बना हुआ है एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़। तो मुझे लगता है मे बी वर्किंग पेरेंट्स हैं, दोनों काम करते हैं, और आजकल इंडिविजुअलिज्म हो गया। इवन पहले तो हम बात करते थे जॉइंट फैमिलीज, फिर हम सिंगल फैमिली, सिंगल से भी आगे इंडिविजुअलिज्म हो गया। रीज़न बीइंग, आई नो मैनी पीपल, आपके भी सर्कल में होंगे, फादर की जॉब चेन्नई में है, मदर की बॉम्बे में है, बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, एक बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, तो वो चारों अब अलग अलग में है। एंड आई मेट अ पेरेंट हु सेड कि अब इस 4 छुट्टियों में मैं अपनी वाइफ को मिलने जाऊँगा, अगले महीने 2 छुट्टियों में अपने छोटे बेटे को मिलने जाऊँगा, और उससे आगे मैं बड़े बेटे को मिलने जाऊँगा। जस्ट इमेजिन कि वो फैमिली इकट्ठी भी नहीं हो पा रही है साल में। सो वो EMIs में मिल रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो उस वजह से आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो हमारा कोर वैल्यू सिस्टम था ना, मिस हो गया। तो वो आई थिंक अगर घर में पेरेंट्स नहीं दे पा रहे तो कहीं ना कहीं स्कूल से आना चाहिए। लेकिन स्कूल में क्योंकि एक्टिविटीज़ और टेक्नोलॉजी और अदर वर्क बढ़ गया, जिस वजह से अब टीचर्स भी जो है ना, और अब जो टीचर्स आ रहे हैं उनके पास भी वैल्यू सिस्टम वो आया कि नहीं, अगेन बिग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि मैं वही चीज़ दूंगा जो मेरे पास होगी। इफ़ यू टॉक मी समथिंग अबाउट, फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे कोई रिसर्च की बात करोगे ऑन साइंस, तो शायद मुझे ना पता हो। लेकिन अगर मेरा बैकग्राउंड IT से रिलेटेड है, जहाँ मुझे आप करियर काउंसलिंग की बात करोगे, जो पता है मैं उसी के बारे में बात कर पाऊंगा। गेटिंग इट? सेम गोज विद वैल्यू सिस्टम। तो बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है बहुत अहम हिस्सा है कि हमें दूसरे की एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। ठीक है, हम SDGs की गोल की बात करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली कितने इंप्लीमेंट हो रहे हैं ऑन सरफेस लेवल, राइट? ग्राउंड रियलिटी इज एंटायरली डिफरेंट। सो वो बहुत ज़रूरी है। आप देखिए जितने भी ये क्राइम रेशियोज हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे इफ़ वी हैव वैल्यू सिस्टम ऑन प्लेस। Very true. And many of the schools have incorporated this value system. They have started. They have started. They have started, but thing is, क्या ग्राउंड रियलिटी पे उतना जा पा रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ 5% ही दे पा रहे हैं, दैट टू अगर कईयों के पेरेंट्स भी बैक सपोर्ट है, व्हाट अबाउट द अदर 95%? मेजॉरिटी तो फिर वही हो रहा है ना। एंड सी एनीथिंग गोज विद द मेजॉरिटी ओनली। कोई सरकार बनती है, कोई रूल बनता है, एनीथिंग इट गोज विद द मेजॉरिटी ओनली। तो हैंडफुल ऑफ पीपल वी कैन नॉट काउंट। ठीक है, दे आर डूइंग अ गुड कॉज। अगर मान लीजिए 100 स्कूलों में अगर 5 स्कूल कर रहे हैं अच्छा, तो व्हाट अबाउट अदर 95? और स्कूल एक ऐसी चीज़ है मैम, मैं आपको बता दूं गीतिका जी, कि स्कूल में ही आप सब कुछ करा सकते हो। कॉलेज में तो देन यू डिसाइड कि आपको क्या करना है, कि मुझे ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। वहाँ पे आपके पिताजी को, माताजी को बुलाया नहीं जाता। पेरेंट्स आर नॉट कॉल्ड इनफ कि भाई इस बच्चे ने आपका काम कंप्लीट नहीं करा है। कॉलेज में आप नोट्स बनाओ ना बनाओ, प्रोफेसर आएंगे, पढ़ाएंगे, चले जाएंगे। आपको खुद से करना है। स्कूल में आपको हर एक चीज़ सिखाई जाती है, इसलिए सिखाई जाती है ताकि आप हर एक चीज़ ट्राई करो एंड देन यू फिगर आउट कि मैं किस में अच्छा हूँ। आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरी शूटिंग बहुत अच्छी है, राइट? तो अगर मैं शूटिंग में अच्छा हूँ, तो अगर मेरे पास शूटिंग करने का मौका मिला ही नहीं,
तो सारी उम्र मुझे मेरी कॉलिंग, मेरी इनर जो मेरा एक ही गाई वर्ड आजकल चला है जो जैपनीज़ का, वो पता नहीं चलेगा कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ में, मैं किस में बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ मिली नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी क्लास 8th में पहली बार कंप्यूटर चलाया, तो मैंने कंप्यूटर जब चलाया तो वो चीज़ ऑन कैसे होती है, ऑफ़ कैसे होती है, मैंने क्लास 8th में सीखा। आज का बच्चा घर में सीख रहा है, तो वो 10-12 साल का डिफरेंस जो मैंने 12 साल में सीखा मान लीजिए, वो आज बच्चा या 13 साल में, वो बच्चा आज 5 साल में सीख रहा है। गेटिंग इट? तो वही चीज़ का डिफरेंस रह जाता है। वो समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं एंड एज आई ऑलरेडी सेड द वे द टेक्नोलॉजी इज टेकिंग इट्स मार्क वी आर बेनिफिटेड फ्रॉम दैम। द चिल्ड्रन टुडे लर्न एट द एज 3 or 4 जो आपने कहा कि हमने आप जब 12 साल के हुए तब सीखा। नाउ इम्पोर्टेंट इज व्हाट रोल डज टीचर्स आर प्लेइंग टुडे? I tell you, see, more of it's a facilitator, because आजकल कंटेंट के लिए ना बहुत कुछ है, बिकॉज ऑनलाइन है। अब ऐसा भी नहीं हम कह सकते कि छोटे शहरों में नहीं है, आगे ये चीज़ हो सकती थी कि भाई एक दिल्ली में कुछ हो रहा है तो मे बी पंजाब के छोटे से गांव में समझ नहीं आ रहा होगा, या राजस्थान में ही समझ में आ रहा होगा, लेकिन नाउ थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी हैव एवरीथिंग वेरी वेल कनेक्टेड। आज जिस माध्यम से हम भी कर रहे हैं तो ये रीच इट गोज टू मिलियंस ऑफ पीपल इरिस्पेक्टिव विच एरिया दे बिलोंग टू। हो सकता है कोई मतलब इंग्लैंड में बैठ के देख रहा हो, रीजन। सो अब उसमें क्या है कि जब हम टीचर्स की बात करते हैं, दे मोर ऑफ फैसिलिटेटर के जो बच्चा आया है उसको फैसिलिटेट करना है। अब फॉर एग्जांपल के बच्चे को ये तो पता है इंटरनेट में जाना है, लेकिन किस वेबसाइट को विजिट करना है, वहाँ पे रिलायबिलिटी किसकी है, एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, बट किस ऑथर की रिलायबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है। गेटिंग इट? एंड देन इट्स नॉट ओनली देन इट कम्स के टीचर एज ए काउंसलर बहुत चला हुआ है CBSE में कि भाई अब टीचर को एक काउंसलर का रोल भी प्ले करना है, उसको गाइड भी करना है। गेटिंग इट? देन कम्स CWSN के जो हमारे बच्चे होते हैं जिनके पास स्पेशल एजुकेटर, those come with some disability sort of thing, so उनके लिए we have to have special educators in the schools, right? We have wellness coaches nowadays. Now it comes to a vocational also. Vocational में now our government is focusing more on skill based, India. बिकॉज रीज़न being कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अगर मैं सिर्फ पब्लिक स्कूल्स की बात नहीं करता, मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करता हूँ जो कि ऑलमोस्ट 60% के आसपास हैं। तो अब मान के चलिए एक बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट स्कूल में इसीलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज की कमी है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉबली। अब वो बच्चा जब 10th के बाद जाए, जब +2 के बाद जाए, वो कॉलेज की फीस नहीं दे सकता, तो कुछ ऐसा स्किल सीख के जाए, कुछ ऐसा वोकेशन सीख के जाए, इट कैन बी प्लम्बिंग, इट कैन बी कारपेंटिंग, कि वो 30-40 हज़ार रुपया कमाना सीख जाए। आई नो पर्सनली, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ऑलवेज थिंक समथिंग गुड ऑफ इट, लाइक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड अ गुड टीचर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंजीनियर एंड अ गुड इंजीनियर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ काउंसलर एंड अ गुड काउंसलर। मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको। मैं थोड़ा सा इसको फाइनेंशियल उसमें लेके जाऊंगा सो दैट कि थोड़ा सा वो एक हम मेजर कर पाएँ। सी बिकॉज मेजर करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैं ऐसे टीचर को भी जानता हूँ जो 5,000 कमाते हैं आज भी, और मैं ऐसे टीचर्स को भी जानता हूँ जो 2 लाख भी कमाते हैं। दैट इज़ देयर सैलरी अपार्ट फ्रॉम व्हाट दे आर डूइंग एज ए ट्यूशंस, और वो मैं एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रहा। देयर आर स्कूल्स, IB स्कूल्स इन इंडिया जहाँ पे टीचर्स 1.5 से 2 लाख कमा रहे हैं, और ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर 5,000 कमा रहा है। ठीक है, सो डिफरेंस आ गया। हो सकता है दोनों ने सेम डिग्री करी हो, थोड़ा सा उसने चैनलाइज करा अपने आप को, थोड़ा सा एक अनकंफर्ट जोन में डाला, थोड़ा अपग्रेड करा, एंड देन ऑब्वियसली देयर वाज अ टाइम आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद द स्पोकन इंग्लिश, बीइंग इनटू अ पंजाबी बॉय फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, वी ऑलवेज स्पीक इन पंजाबी, बट अगेन मैंने अपने आप को डिस्कम्फर्ट जोन में डाला। आई स्टार्टेड विद सर्टन मेथड्स एंड नाउ आई एम फ्लुएंट बिकॉज दैट इज़ अ नीड ऑफ माई जॉब। इफ आई हैव टू क्लियर अ इंटरव्यू, आई हैव टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एज वेल। वेरी ट्रू। गेटिंग इट? अब बहुत सारे लोगों को, मुझे भी नहीं पता चलता है कि मैं कब बड़ा एक सहज तरीके से, मतलब आई ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, टू हिंदी ऑल्सो। हिंदी बहुत अच्छे से मैंने सीखी बीइंग इनटू पंजाबी बॉय अगेन, तो बहुत सहज तरीके से होगा। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा हूँ, मे बी ड्यू टू द मोर एक्सपोजर इनटू दोज लैंग्वेजेस। देन कम्स के वोकेशनल में जब वो बच्चा बाहर निकले तो उसके पास एक जॉब हो। आज कारपेंटर, प्लम्बर, अच्छे कारपेंटर की कमी है। देयर आर प्लम्बर्स, देयर आर कारपेंटर दोज आर रनिंग 1 लाख 2 लाख पर मंथ। गेटिंग इट? आप देखो वही टीचर की बात जैसे मैंने करी, ऐसे ही वो है। आप ऐसे इंजीनियर पे आ जाओ, इंजीनियर ऐसे भी है जो 30 हज़ार के लिए बेचारे वो एक लाइन में लगे हुए हैं जहाँ आउट ऑफ जॉब है, और ऐसे इंजीनियर्स हैं दोज आर अर्निंग इन करोड्स ऑल्सो। तो आप इसमें, अब मैं एजुकेशन को वो नहीं करूँगा, इसमें आपकी पर्सनल एबिलिटी, आपकी पर्सनल चॉइसेस भी बहुत आ जाती हैं। कुछ लोगों को होता है कि मुझे अपने घर से बाहर नहीं निकलना, यहीं पे रहना है, मैं इसी शहर में रहना है, कंफर्ट जोन में रहना है, तो दे मोस्टली गो विद गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ तो प्राइवेट में हो जाएगा बस आसपास, लेकिन जिनको ग्रो करना है देन दे हैव टू फ्लाई, और जब आप निकलते हो तो देयर इज़ नो लिमिट। People are flying to abroad also. They are teaching in foreign countries also. Absolutely, absolutely. So that is one of the most important point you have highlighted over here.
to come out of your comfort zone. Whatever you do in your life, you want to excel, come out of your comfort zone. That is the crux of this session. मैं आपको बताता हूँ कितना बड़ा कोविड हुआ अक्रॉस द ग्लोब, बहुत लोगों की जॉब चली गई. सर्टन पीपल हैव लुक आफ्टर हाई, पता नहीं क्या होगा. अदर्स सीक एज ए अपॉर्चुनिटी. कईयों ने अपने ऑनलाइन अपने ट्यूशन सेंटर्स खोल लिया, ऑनलाइन कोचिंग देना शुरू कर दिया. आई नो टीचर दोज हु आर टीचिंग स्टूडेंट्स इन दुबई, ऑस्ट्रेलिया, एंड दे आर चार्जिंग इन डॉलर्स एंड पाउंड्स इंग्लैंड में जाके. अब उसका जो ROR है, रिटर्न ऑन जो उन्होंने करा है, वो बहुत हाई है. आप मान लो यहाँ पे 1000 रुपये ले रहे हो, आप वहाँ 500 भी ले रहे हो, वहाँ 500 का आपको 50,000 बन रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपने 3 बच्चे भी पढ़ा लिया, 1.5 लाख बन गया. वेरी ट्रू. आपको मेहनत कहाँ करनी है, आपको बहुत ज़रूरी है. आपकी मंजिल यहाँ है, आप वहाँ भाग रहे हो, भागते रहो, आप उतना दूर जा रहे हो. सो यू हैव टू बी, उसके लिए पॉज अगेन. यहाँ पे थोड़ा सा आपको यू हैव टू हैव अ सेल्फ टॉक, थोड़ा सा अपने ऊपर आपको काम करना पड़ेगा. ये बहुत ज़रूरी है. और जो आपकी स्किल्स होती है ना, कभी ज़ाया नहीं जाती है, कहा जाता है. वन ऑफ आवर नोन्स, दे आर इन मुंबई, एंड बिकॉज दे वर वेरी गुड इन हिंदी, क्योंकि हम नॉर्थ इंडियन बेल्ट में हमारी हिंदी बहुत अच्छी होती है. तो जब वो महाराष्ट्र में गए, दे स्टार्टेड गेटिंग ट्यूशंस फॉर हिंदी सब्जेक्ट. अगर हमें कोई पूछे हिंदी की ट्यूशंस, बट यू नो हाउ योर स्किल्स हैव बिकम एसेट फॉर यू, दैट यू आर अर्निंग आउट ऑफ इट. सो एज यू सेड दैट यू लर्नड. और सीखना, निरंतर सीखना अच्छी निशानी है. इफ यू आर नॉट अपस्किलिंग, यू आर डाउन स्किलिंग. मैं उसको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ आपको. मान लीजिए 10 लोग जो हैं एक सेक्टर में है, लेट मी एनी सेक्टर, ठीक है. अब आपने कुछ 2 चीज़ें सीखी अपने सेक्टर में और आप स्टॉप हो गए भी, ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैंने ये 3 ऑनलाइन कोर्सेज कर लिए या ये कर लिया, अब मेरा जो है बहुत है, अच्छी सैलरी आ रही है. लेकिन बाकी लोग कॉन्टीन्यूसली अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं. अब वो आपसे आगे हो जाएंगे, तो आप अपने आप डाउन स्किल हो गए ना, क्योंकि वो आपसे आगे हो गए. इट डजंट मीन कि मैंने एक MBA की डिग्री करी, मैंने टॉप पोजीशन करी, मैं 90% लेके आया, राइट. तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपने 90% लिए, लेकिन आप अपस्किल कितना कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है. तो अपस्किल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. आज भी मैं कुछ नया सीखता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है. मुझे लगता है मैं 90 साल का भी होगा तो कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ. तो लर्निंग इज़ एवर एंडिंग. और जब कोई टीचर ये कहता है कि मेरा स्टूडेंट आज IAS है, IPS है, ये बड़े बड़े पदों पर है, इसका मतलब ये है कि उस टीचर ने अपने ऊपर कितनी मेहनत की होगी, जो उसके द्वारा इतने महान पुत्र उत्पन्न और पुत्रियां उत्पन्न हुई जो आज देश का गौरव बढ़ा रहे हैं. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. देखिए, हमारी गुरु की जो महिमा है वो तो अपरंपार है, मतलब ऑलवेज. कबीर को तो क्या दर्जा दिया गया. अब देखिए, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन्हें गोविंद दियो दिखाए. तो भगवान से ऊपर भी गुरु का दर्जा हमारे देश में, हमारी परंपरा में. तो आई थिंक दैट इज वंडरफुल. Thank you, sir. Thank you so much for giving us this wonderful session, and we believe that we are going to learn more from you, and this session is going to be one of the best sessions. Right. Thank you, sir. Thank you so much, dear friends. We would be talking more on how you could make your careers in teaching. It's a very, very beautiful profession. As I said, it's an emotion. It's not just a profession, and if you have this emotion to teach someone, go ahead. Thank you for watching us.